السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی وی 63 کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو مختلف مذہبی، روحانی، سیاسی، سماجی، علمی شخصیات سے ملاقاتیں کرواتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی ہی شخصیت سے بہت زیادہ خدمات کی ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں میں صلح کروائی۔ لوگوں کے درمیان کئی سالوں کی دشمنیاں تھیں، ان دشمنیوں کو ختم کر کے ان کے درمیان صلح کرائی، کورٹ کچہری تھانوں کے چکروں سے بچوایا اور ان کے لاکھوں روپے بچائے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح اچھی چیز ہے، بہتر ہے۔ اور اللہ نے حکم بھی فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ جن کے درمیان بھی آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور دشمنیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں صلح کروانی چاہیے۔ میں آج آپ کو ایسی شخصیت سے ملواتا ہوں، ان کا نام ہے حاجی جاوید بنگش صاحب، اور یہ صدر ہیں پختون امن کمیٹی کے۔ یہ ایک کاروباری بھی شخصیت ہے اور سماجی بھی شخصیت ہے۔ آئیں آپ ان سے ملاقات کریں۔ ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو بزنسز ہیں، کاروبار ہیں، ان کے افتتاح کیے۔ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں ان کو اپنے کاروبار کا، اپنے بزنس کا افتتاح کروانے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے اور ان کی جو پختون امن کمیٹی ہے، انہوں نے بہت بڑے بڑے تنظیمات اور آرگنائزیشن سے تمغے اور میڈلز حاصل کیے۔ ہم کیمرے کی آنکھ سے آپ کو تفصیل سے نہیں دکھا سکتے اور سارے نہیں دکھا سکتے، بس چند ایک تمغات اور میڈل آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں جب میں گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ غلاف کعبہ کا بہت بڑا ٹکڑا ان کے گھر میں موجود ہے۔ کچھ جگہوں پر میں نے دنیا میں 28 ملکوں میں بھی، پاکستان میں بھی دیکھی، لیکن بہت چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا غلاف کعبہ کا ٹکڑا ان کے گھر میں موجود ہے، اور ماشاءاللہ سکون ہے گھر میں اور برکتیں ہیں۔ تو جب انسان دوسروں کے لیے صلح کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر اور ان کے گھر میں بھی برکتیں ڈالتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ سے ان کی ملاقات ایک تفصیلی انٹرویو کے ذریعے کروائیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ صدر پختون امن کمیٹی محترم جناب حاجی جاوید خان بنگش صاحب، انہوں نے آج ہمیں اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ٹائم دیا۔ ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ آپ سے اپنے سوسائٹیوں، اپنے بزنسز کا افتتاح کروا رہے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جن کی کثیر تعداد میں، جن کے آپس میں جھگڑے ہوئے، وہ تھانوں میں جانے کی بجائے، عدالتوں میں جانے کی بجائے، کورٹس میں جانے کی بجائے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ان کے صلح کروا دیتے ہیں۔ تو اتنی آپ کی کمیونٹی خدمات ہیں، آپ سماجی شخصیت بھی ہیں، کاروباری شخصیت بھی ہیں، تو آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں اور اس سوال کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے اظہر خان میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر بنگش ہاؤس میں تشریف لائیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری ٹیم کا۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ آپ
लोग इधर आते हैं राज़ीनामे के लिए, कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये एहसास अल्लाह ताला ने हमें दी है कि लोग थाना कचहरी के बजाय वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक उम्मीद लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कमेटी है वो इसी बिना पर बनी है कि लोगों के 16 और जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ हो, उसमें उसका साथ दें। असल में इंसान का मकसद किया बंदगी का मसले, बंदगी करना ये नहीं है कि गंदगी करना। तो अल्लाह ताला ने हमें बनाई एक दूसरे के लिए मदद के लिए, तो लिहाजा इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो दुश्मनियाँ हैं, ये नचाकियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाएं। ये छोटी छोटी बातों पर फसाद बर्पा हो जाते हैं, तो ये इसको हमें बैठ कर हल करना चाहिए। ये नहीं कि कोर्ट में वहाँ आप देखेंगे हमारे थाना कचहरी से लोग पहले से तंग आ चुके हैं। अगर आप देखें तो हमारी अदालतों में लोग पीस रहे हैं, उनको तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। इंसाफ हमारी अदालतों के लिए तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र चाहिए और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़जाना चाहिए। तो लिहाजा इसमें हर बंदा आसानियाँ ढूंढता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वो अता किया जो हमें करना चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वाकई इंशाल्लाह इधर होंगे और करेंगे भी, जहाँ पर भी किसी को तकलीफ़ होगी तो इंशाल्लाह हम उनकी भरपूर मदद करेंगे। इतनी माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं, लोगों के 20-20 साल के झगड़े की सुलह करा रहे हैं, कसीर तादाद में लोग आपकी तरफ रुजू करते हैं, तो आप फिर सियासत में क्यों नहीं आते? अज़हर ख़ान आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर एक खिदमत ऐसी होती है तो मेरे ख़्याल में सबसे बेस्ट नहीं है कि बग़ैर सीट पर होकर आप खिदमत करें, उसमें आप लोगों से झूठे वादे करें, फिर आप काम न करें, वो वोट भी ले लें। जैसे अभी देखने किस तरह जिन्हों की हुकूमतें आई हैं, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा हुआ है, बल्कि उसे लोग मुतनफ़र हो चुके हैं। तो हम वो सियासत हमें आती नहीं है। सियासत का मकसद क्या है? झूठ बोलना। हम झूठ बोलते ही नहीं हैं, ना हमारा एक काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस बिना पर अभी बग़ैर सियासत हर चीज़ से पाक होकर हम ये खिदमत करेंगे, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने बनाया इसलिए थी, हमारा काम है, ये करेंगे और करते रहेंगे। तो सियासत में आने का कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सियासत में, वरना सियासत में आना होता तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें मिले होते, सीट होती, लेकिन हमने इस तरह सोचा तक नहीं है। लेकिन वही खिदमत हम कर रहे हैं जो वो करेंगे। माशाल्लाह आप इबादत कर रहे हैं। लोगों के कोर्ट कचहरियों में लाखों रुपए ज़ाय हो जाते हैं और फिर झगड़े जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, तो आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उनके अंदर में सुलह करवा देते हैं, और ये बग़ैर फ़ी सबिलिल्लाह, बग़ैर किसी मुआवजे, बग़ैर किसी लालच के। तो ये भी अल्लाह की ये इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है। आपकी जो पख्तून अमन कमेटी है उसके मेन जो अग़राज़ व मकासद है वो क्या है? वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इस बिना पर बनी कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ हो, कुछ हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कर, किसी का रिकवरी का मसला हो, किसी का नाजायज़ कब्ज़ा हुआ हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उसे में भरपूर मदद कर रहे हैं और करेंगे, और काफ़ी सारी वो भी चुकी हैं। ये इस बिना पर बनी अगर किसी को तकलीफ़ हो तो खिदमत के लिए, इस वजह से कमेटी वजूद में आई है। आखिरी सवाल ये है कि आप मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके हवाले से क्या कहते हैं? मौजूदा सियासी सूरत तो आप पूरी वर्ल्ड के सामने हैं कि क्या है कि, लेकिन ये है कि आवाम, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन गरीब आवाम पीस रही है, उन्हीं के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं। मैंने तो पहले भी ये कहा था कि अगर आप इतने करने लोगों के लिए, तो आप अमीरों से जितनी जितना फैसिलिटी दी हुई है वो उनसे ख़त्म करें, तो फिर देख लें कि आपकी नीचे से आप जो डालते तो फ़ौरन गरीब के ऊपर बोझ डालेंगे। तो ये उन मसले गरीब के लिए तो नहीं आ रहे हैं, हर बंदा अपने मकसद के लिए आ रहा है। ये करें जितनी जितनी बड़े सीटों पर, वोदों पर, आला ऊपर ग्रेडों की उनके ज़रा जितनी फैसिलिटी उनको दी हुई ख़त्म करें ना, पेट्रोल ख़त्म करें, उनकी जो तनख्वाहें कम करें। जैसे दूसरा आदमी एक गरीब 25, 30, 50 हज़ार में क्या इनके 4-5 लाख गुजर, आप उनको कम नहीं कर सकते हैं? आप उनको जितने प्रोटोकॉल है ये ख़त्म करें ना। तो देख लें, पर ये सियासी का तो यही मकसद होता है कि आप पाएँ लोगों को आसानियाँ पैदा करें। तो जो भी है पहले से उन्होंने ऊपर बम गिराए थे, उन्होंने से ज़्यादा उनसे बम गिरा दिए, तो आवाम तो पीस रही है, तो कुर्बानी के बकरे बने हुए हैं। तो ये एक तो हमारे अमालों का नतीजा है। दूसरा अज़हर ख़ान, हमें चाहिए कि हर वक्त हर टाइम
अपने अल्लाह को पहचाने कि मेरा अल्लाह कौन सा है, क्यों भेजा दुनिया में, मकसद पहचाने। ये जो मकसद अल्लाह भेजा वैसे नहीं भेजा, खाने पीने के लिए नहीं भेजा। हमारा काम क्या है, दिन को कमाना है, रात को खाना है, सुबह पकाना है, इसके लिए अल्लाह नहीं भेजा। अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए भेजा कि मेरे अल्लाह ने वाज़ेह कुरान में फरमाया, क्या मैंने जिन इसको नहीं बनाया मगर अपनी इबादत के लिए। अब हमने अल्लाह को पहचाना नहीं है, ये अमालों का नतीजा है। जितनी महंगाई, कहते हैं जिस मुल्क में सूद और जना ज़्यादा हो जाएं तो फिर उसमें मुल्क में ज़रूरत की चीज़ें महंगी मिलेगी और मौतों की कसरत होगी। जैसे अभी मौतों की कसरत है और ज़रूरत की चीज़ें, सैलाब की, कभी पहले धमाके थे, फिर अभी ये सैलाब, कभी क्या बीमारियाँ, कभी कोरोना आ गई, कभी कौन से, ये मुख्तलिफ़ किस्म की वबा हमारे पास आएगी। क्यों? हमने अल्लाह की रस्सी को, जो दीन को है, ऐसे पीछे अड़ गए हैं। हमने गैरों के तरीके पे चल रहे हैं। मगरब में तो सूरज जो ग्रुप पे होती है वो भी अपने हाथ जोड़ रहे कि खुदा इधर के उड़ रहे। मशरक़ से सूरज निकलता है, रोशनी है वहाँ से। हम मशरक़ को छोड़कर, मशरक़ के तरीके को छोड़कर हम मगरब के तरीके में जा रहे हैं, तो इसमें कामयाबी नहीं है। अल्लाह ने कामयाबी अपने हुक्म में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके में और आपके किरदार के अंदर के दीन, बस दीन के ऊपर आओ, दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। सिर्फ अल्लाह की पहचान करो कि मेरे इस ज़मीन व आसमान का बनाने वाला कौन है? अल्लाह। पहाड़ों को रवाना करने वाला कौन? अल्लाह। दिन और रात का निज़ाम लाने वाला कौन? वो उसको पहचानो कि मुझे क्यों भेजा, मुझे कैसे डिज़ाइन किया। कभी हमने सोचा है कि मेरा अल्लाह कौन है? उस अल्लाह ने हमें पैदा किया और अपने मखसूस अपनी इबादत के लिए। मना तो नहीं, अल्लाह नहीं फरमाता कि तू बिज़नेस भी, सर्विस न कर, फ़ौज न अटेंड कर, और आर्मी ज्वाइन न कर, पुलिस न ज्वाइन कर, हर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर, बिज़नेस प्रोजेक्ट लगा, लेकिन मेरा हुक्म मेरे नबी के तरीके सामने रख कर चल। फिर आप अमेरिका में रहें, लंदन में रहें, जर्मनी में रहें, चाइना में रहें, अफ़गानिस्तान में रहें, पाकिस्तान में रहें, फिर आप बेहतरीन शख्सियत हैं, फिर अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। एक दिन जाना है, 2 दिन की ज़िंदगी तो मौत है, हर चीज़ का सवाल है, थोड़ी सी ज़िंदगी है। लिहाजा आइए अल्लाह की रस्सी को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके को साथ, इसके रस्सी को पकड़ के और इसके ऊपर अमल करें तो दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। वरना खुदा की कसम इसके अलावा कोई कामयाबी नहीं है। ढूंढो फिरो, जिधर मर्जी करो, नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा फिर आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं और कीमती वक़्त लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। बंगश साहब माशाल्लाह फ़िक्री, नज़रियाती, इल्मी और रूहानी गुफ्तगू फरमा रहे थे। अगर आपका कोई सवाल हो इनकी कमेटी के हवाले से, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। TV 63 के हवाले से भी कोई अगर सजेशन हो, आप मोस्ट वेलकम हैं। आप सजेशन में कमेंट्स में अपना लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। वस्सलाम।